while studying, I use Pomodoro method every time. I used to study 45 minutes, 5 मिनट का break और उसके बाद फिर से 45 minutes. I studied like this consistently for 4 years. दो टाइम बच रहा है, सुबह 2 घंटे मिल रहा है, सुबह 2 घंटे पढ़ना है, शाम में कोचिंग से आके 2 घंटे मिल रहा है, उसमें भी पढ़ना है. So I manage like this कि जितना भी थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, I used to steal it. नीट पीजी बस नॉलेज का गेम नहीं है. You have to apply that knowledge too. You have to make yourself that calm कि आप उसको अप्लाई कर पाओ in exam hall. Why do you believe focused hours ज्यादा मैटर करते हैं long study hours? If you are giving your brain को 1 घंटे दे रहे हो for studying a single topic और उसी टाइम पे कोई और 10 मिनट दे रहा है, तो your brain will work same. क्योंकि 10 मिनट में भी वही टॉपिक कंप्लीट हो सकता है और 1 घंटे में वही टॉपिक कंप्लीट हो सकता है. When you think कि कोई और हमसे ज्यादा है और वो सिर्फ वही ये काम कर सकता है, तो your mindset is very narrowed. अगर आपका mindset ही narrowed है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कभी लेस देन टॉप 100 में आ ही नहीं सकती, तो कैसे आ पाओगे? So things like this ना, कि अगर आपको बोल रहा है कि पेरिफेरल कॉलेज के बच्चे तो नहीं जा पाते हैं भाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, तो आई थिंक दैट इट्स टोटली रॉन्ग. जरूरी नहीं है कि एग्जाम वैसा ही जाए जैसा आपने सोचा है, बट अगर आपने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है, आपका बेस्ट शॉट है, दिस विल गिव यू द सेटिस्फैक्शन एंड यू कैन मूव ऑन विद योर लाइफ इवन इफ द रिजल्ट इज नॉट एज यू हैव एक्सपेक्टेड. So if you are a doctor who thinks you can't enjoy life and still crack NEET PG, if you believe only AIIMS, Delhi or Mumbai students make it to the top, and if you're stuck in a plateau despite doing everything right, this conversation will change how you see preparation. Today we are talking to Dr. Sanjeevani, a state government medical college graduate who got NEET UG rank of 14,400, who balanced tips, friends, college life and academics while clearing NEET PG and INI in the first attempt, with a top 500 rank in INI and 181 rank in NEET PG. This is not a story of burnout. This is a story of balance, discipline, and consistency done right. So hello, Sanjeevani, how are you? I'm fine, sir. How are you? I'm also good. So how is your life going on after the result? I'm just waiting for round 3 results actually. MCC keep postponing it, so I'm just waiting for that, and it's fine. Like everything is fine. I'm free from that NEET PG trauma, so I'm good right now. Okay. So let's talk about your MBBS life. Like you told ki you got in NEET PG like 14,400 rank, and then after entering into the MBBS, you considered yourself a mediocre student. So what did that mean to you at the time? Actually, sir, when I started my MBBS, I always thought that I was mediocre because at the time of UG also, I never thought that I'll get into Central Institute. मेरा target हमेशा यही था कि बस कोई भी MBBS कॉलेज मिल जाना चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज. So that was my mindset. So I think that really put me down. क्योंकि अगर आप अपना mindset ही छोटा रख रहे हैं, तो you can't achieve big things. So I really think that this affected me in that way. इसी के कारण से मैं अच्छा स्कोर नहीं कर पाई नीट यूजी में. फिर जब मैंने कॉलेज एंटर किया, तो that was my same mindset. But after later when I got like many gold medals, it changed. एक होता है ना कि जैसे अपन नीट पीजी में थोड़ा ऐसा रैंक, फिर एक मीडियोकर कॉलेज में आए, फिर खुद को कैसे मोटिवेट करना, जैसे तुमने बताया कि यू टॉप्ड योर फर्स्ट प्रॉफ एग्जाम, तो मतलब हाउ डिड दैट मोमेंट चेंज योर कॉन्फिडेंस एंड माइंडसेट? Actually, like in first year, I used to just study daily. I was consistent. I just used to study daily like 1 to 2 hours मैं daily पढ़ लेती थी. फिर जब उस 1-2 घंटे पढ़ने से जब मेरा like I topped my first year, तो I realized that this strategy is right. मतलब कि अगर मैं रोज 1-2 घंटे भी पढ़ रही हूँ, तो this is great. So I thought कि चलो यही ट्राई करके देखते हैं, रोज 1-2 घंटे पढ़ के देखते हैं, मतलब रोज 2-3 घंटे पढ़ के देखते हैं, बस कंसिस्टेंट बन के देखते हैं कि I have to open my books daily. बस this should be my target कि no matter what happens with me, I'll open my book daily. तो जैसे होता है, जैसे मैं बताया कि you got 14 gold medals and 2 silver medals while studying only 3 to 4 focused hours a day. Yes. तो मतलब खुद को ऐसे कैसे ट्रेन किया, क्योंकि मेडिकल कॉलेजेस में तो बहुत डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ऐसा नहीं कि जस्ट हॉस्टल में ही रहता है, पूरे तुम्हारे कैंपस में ही बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रैक्शंस होंगे जो तुमको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, नहीं चलो यार कल पढ़ लेते हैं, चलो यार परसों पढ़ लेंगे, आज थोड़ी मस्ती कर लेते हैं. तो हाउ डिड यू ट्रेन योरसेल्फ टू मतलब स्टडी विदाउट डिस्ट्रैक्शन? Actually, I never restrained myself from doing anything. मैं ट्राई करती थी कि मैं मोस्टली चीजें कर लूं. For
अपने पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, एंड यू हैव टू डिवाइड इट वेरी वाइजली। अगर आप वाइजली अपना टाइम यूज कर रहे हो तो आई थिंक यू कैन डू एवरीथिंग। लाइक अगर आपके पास में 6 घंटे बच रहे हैं क्लास जाने के बाद में, तो 2 घंटे आप अपने दोस्तों के साथ में मजे कर लो। बाकी जो 4 घंटे बच रहे हैं, यू हैव टू स्टडी इन दैट टाइम। एंड ऑल्सो ना, वाइल स्टडिंग आई नेवर यूज माई फोन। आई यूज पोमोडोरो मैथड। ओके, 45 मिनट्स आई यूज टू स्टडी एवरी टाइम। आई यूज टू स्टडी 45 मिनट्स, 5 मिनट का ब्रेक, और उसके बाद फिर से 45 मिनट्स। So this was I studied like this consistently for 4 years. I did just same thing. Like बाकी टाइम जब मजे करना है मजे कर लो, जो टाइम बच रहा है 4-5 hours I used to save for myself। जितना टाइम बचता था, सुबह 2 घंटे मिल रहा है, सुबह 2 घंटे पढ़ना है पोस्टिंग जाने से पहले, शाम में पोस्टिंग से आके 2 घंटे मिल रहा है, उसमें भी पढ़ना है। सो आई मैनेज लाइक दिस कि जितना भी थोड़ा बहुत टाइम मिल रहा है, यूज टू स्टील इट। ओके, तो एक होता है ना कि जब हम ऐसे कॉलेज में जाते हैं जहाँ हमारे मतलब ऐसे सीनियर्स ने जैसे खुद की एक्सपेक्टेशंस होती है ना, अरे यार मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में जाऊँ या दिल्ली में जाऊँ या मुंबई के कॉलेजेस लूँ, वहाँ सीनियर्स बहुत अच्छे मिलेंगे। तो तुम्हारा इस चीज को रिलेटेड क्या था, मतलब तुम्हारी जर्नी कैसी थी कि सीनियर्स कैसे मिले और उन्होंने कैसे तुमको गाइड किया, मतलब ऐसे गाइडेंस पार्ट तुम्हारे लिए कैसा रहा तुम्हारे कॉलेज में? एक्चुअली टिल थर्ड ईयर तो हमारा लॉकडाउन था। सेकेंड ईयर में एवरीथिंग वेंट इन लॉकडाउन। बट जब हम थर्ड ईयर में आए ना, तो आई गेट टू नो दैट मैनी ऑफ माई सीनियर्स आर वेरी इंटेलिजेंट। सो like in 17 batch also, many of my seniors got selected in INICT. So that really boosted my confidence कि अगर सर लोगों का हो सकता है, मैम लोगों का हो सकता है, तो मेरा क्यों नहीं हो सकता, है ना? They are also from my own college. So if they can, then why can't can? So this was the thing that changed me, I guess. Okay. Also, I think that in every college now there are some seniors who will guide you through your journey. Okay, like they are nice seniors who will tell you that study. Okay, some seniors तो ये बोलेंगे कि अभी कम पढ़ लो, मतलब कोई दिक्कत नहीं, अभी कम पढ़ लो, है ना, क्या ज्यादा पढ़ रहे हो। पर कुछ सीनियर्स ऐसे होते हैं जो आपको राइट गाइडेंस देंगे। तो यू हैव टू फाइंड दो सीनियर्स एंड यू हैव टू स्टिक विद देम। ओके, तो मतलब तुमने बोला कि डेली तुम 2-3 घंटे पढ़ लेती थी। तो एक होता है ना कि जब एमबीबीएस मतलब मेडिकल लाइफ में आओ तो ये लगता है अरे यार मुझे तो बहुत लॉन्ग आवर्स स्टडी कर रखना पड़ेगा जिससे कि हम आगे मैं बहुत ज्यादा अच्छा अचीव कर पाऊँ। तो तुम्हारा इसको लेके क्या है कि व्हाई डू यू बिलीव कि मतलब फोकस्ड आवर्स ज्यादा मैटर करते हैं लॉन्ग स्टडी आवर्स से? आई रियली थिंक कि अगर आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो ना, लाइक इफ यू आर गिविंग योर ब्रेन को 1 घंटे दे रहे हो फॉर स्टडिंग अ सिंगल टॉपिक, और उसी टाइम पे कोई और 10 मिनट दे रहा है, तो ब्रेन विल वर्क सेम। क्योंकि 10 मिनट में भी वही टॉपिक कंप्लीट हो सकता है और 1 घंटे में वही टॉपिक कंप्लीट हो सकता है। तो अगर आप अपने ब्रेन को 1 घंटे दोगे, तो इट विल टेक मोर टाइम, है ना? एग्जाम में भी सेम होता था, हम वही टॉपिक 10 मिनट में पढ़ के चले जाते थे और हमें उतना ही याद रहता था, उससे ज्यादा भी याद रहता था हमें भी। सो हम मैं भी यही करती थी कि अब मैं खुद ही टाइम कम देती थी। एक टॉपिक के लिए अगर कोई और 1 घंटा दे रहा है, तो आई जस्ट गिव माई ब्रेन 10 मिनट्स कि 10 मिनट में करके जाना है इसको। सुना, मैंने अपने ब्रेन को ऐसा ट्रेन किया कि जल्दी कम टाइम में ज्यादा पढ़ना है। सो दिस वॉज माई अप्रोच। ओके, और जैसे होता है ना कि आजकल क्या होता है, लोग एमबीबीएस फर्स्ट ईयर ज्वाइन किए और फर्स्ट ईयर से नीट पीजी के प्रेप में लग जाते हैं, सब कुछ छोड़ के। उनको पता ही नहीं है कि और क्या हमारी लाइफ में होता है। तो जैसे तुमने बताया कि यू वेंट फॉर मल्टीपल लॉन्ग ट्रिप्स एमबीबीएस के समय या इंटर्नशिप के समय, तो हाउ डिड दैट टेकिंग ब्रेक्स हेल्प रेदर देन हर्ट योर प्रिपरेशन? यू नो व्हाट आई से, कि अगर आप अपने ब्रेन को रिस्ट्रेन करोगे ना फ्रॉम हैविंग दैट गुड मोमेंट्स, इट विल रिटेलिएट। ओके, क्योंकि अगर हम हमारा ब्रेन को हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो 10 घंटे काम करे, तो वी हैव टू गिव इट दैट रिवॉर्ड ऑल्सो, है ना? अगर रिवॉर्ड नहीं देंगे तो ब्रेन विल नॉट वर्क प्रॉपरली, है ना? कोई मशीन नहीं है ब्रेन दैट इट विल वर्क लाइक कंटिन्यूसली 10 आवर एंड यू एक्सपेक्ट इट कि अब बाकी भी 2-3 साल और पढ़ लेंगे, है ना? इट्स अ लॉन्ग जर्नी। एमबीबीएस इज 6 year लॉन्ग जर्नी। सो यू हैव टू वर्क लाइक दैट, यू हैव टू बैलेंस थिंग्स, एंड यू हैव टू make your brain train in a way that it will work consistently, and it will balance both things together, कि थोड़ा टाइम पढ़ने को भी दे दिया, थोड़ा टाइम घूमने को भी दे दिया, है ना? ऐसे में क्या होगा कि बर्नआउट नहीं होगा। लाइक आई नेवर गॉट बर्नआउट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि मैं 4 महीने पढ़ती थी, उसके बाद मुझे अगर फील होता था कि आई कैन नॉट डू दिस एनी मोर, सो आई यूज टू गो टू ट्रिप्स, आई यूज टू गो विद माई फ्रेंड्स टू लाइक स्मॉल ट्रिप्स ऑल्सो आई वेंट। सो दिस विल ऑल्सो हेल्प यू वेरी मच। लाइक आपका बर्नआउट नहीं होगा अगर आप ऐसे वर्क करोगे तो। Okay, so do you think enjoying college life actually prevented burnout for you? यस इट डिड, आई जस्ट टोल्ड यू दैट कि अगर आप वही वही चीज है कि अगर आप 4 महीने पढ़ रहे हो, है ना, और उसके बाद अगर आपको टाइम मिल रहा है अपने ब्रेन को रिवॉर्ड देने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम ना आपका ब्रेन बेटर वर्क करेगा। और अगर आप उसको रिवॉर्ड नहीं दे रहे हो, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार 10 घंटे पढ़ना है और 1 साल पढ़ती रहूंगी मैं बस,
तो उतने अच्छे से काम नहीं करेगा ब्रेन, बिकॉज इट नोज ना कि कोई रिवॉर्ड तो मिलने वाला नहीं है। तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू गिव इट रिवॉर्ड। जिस चीज के लिए वो काम कर रहा है ना, उसके लिए उसे रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए। ओके, तो तुमने जैसे बताया कि तुमने नीट पीजी प्रिपरेशन अपने थर्ड ईयर के मिड में चालू किया, तो मतलब वो ये कैसे तुमने प्लान किया कि मुझे थर्ड ईयर के मिड में ही चालू करना है? क्योंकि आजकल तो लोग फर्स्ट ईयर से ही चालू कर दे रहे हैं, तो ये तुम्हारे दिमाग में क्यों नहीं आया? एक्चुअली यू नो, बीइंग इन अ पेरिफेरल गवर्नमेंट कॉलेज ना, दिस थिंग्स हैपेंस। क्योंकि फर्स्ट ईयर में सब अपने नॉर्मल पेज पे रहते हैं, किसी को नीट पीजी का, हमें पता ही नहीं था नीट पीजी का कुछ ज्यादा। फर्स्ट ईयर मेरा ऐसे ही निकल गया। सेकेंड ईयर में दिवस कोविड, तो कोविड में भी ज्यादा कुछ नहीं हुआ, थोड़ा बहुत मैंने पढ़ लिया था। थर्ड ईयर में व्हेन आई गो वेंट बैक टू कॉलेज, एट दैट टाइम ना everyone was studying, so I realized that this is the right time. I have 3 years left. If I'll study consistently, then I can crack it in my internship attempt only. So एट दैट टाइम आई डिसाइडेड कि अब चलो कॉलेज में भी आ गए, अब कोविड वगैरह नहीं आएगा, आई कैन स्टडी कंसिस्टेंटली। सो आई डिड। तो मतलब ये प्रिपरेशन फेज जो जो स्टार्ट हुआ, मतलब होता है ना कि हम बस कोचिंग प्लेटफॉर्म्स के नोट्स पढ़ने लग जाते हैं, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक छोड़ देते हैं। तो तुम्हारी जर्नी में ये कैसा था? मतलब तुमने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को फॉलो किया कि थर्ड ईयर जैसे तुमने बोला कि मिड में तुमने चालू किया, तो सिर्फ कोचिंग प्लेटफॉर्म्स के नोट्स पे ही फॉलो किया? नो, आई नेवर यूज स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स, यू नो, बिकॉज अभी के जो कोचिंग में जो नोट्स मिलते हैं, देर इनफ। वो सारे जो भी, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पीएसएम की बात करूं, तो पार्क की जितने भी कोर पॉइंट्स है, दे आर इन नोट्स। सो यू डोंट हैव टू स्टडी टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक को आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते हो, है ना। टेक्स्ट बुक यू कैन स्टडी जस्ट वन टाइम, एंड उसके बाद आप भूल जाओगे। बट दिस नोट्स अगर आप इसको 4 से 5 बार पढ़ते हो ना, तो इट विल बी मच बेटर देन रीडिंग अ टेक्स्ट बुक। So I always use the notes. Like in my university also, I never read textbook. थोड़े बहुत questions के लिए I used to read, but mainly I read from my notes and I gave exams. Okay, so just you started your preparation, and the same thing happens with you also while doing these GT and all. You face 6 month plateau at 130, 135, correct? Despite doing everything right. So how mentally challenging was that phase? Actually, you know, after giving every GT na, like for 6 months, I was stuck in 130 to 135 correct. And after giving every GT, I used to think that what am I doing wrong? Is it something that I'm not studying enough? Like 4-5 घंटे पढ़ रही हूँ, तो is it not enough? है ना, ज्यादा मजे कर ले कॉलेज में, like is this something like this? But you know, later I realized that I didn't have problem with my knowledge. I knew think my content was good, PYQ भी मैं सही कर देती थी. The problem is with my application. I was not able to apply that knowledge. So I think that नीट पीजी एग्जाम ऐसा है कि वो आपकी नॉलेज नहीं चेक करेगा, नॉलेज तो करेगा ही चेक, बट साथ में इट विल चेक योर एप्लीकेशन टू। तो अगर आप कामनेस में वो अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, तो यू नो यू वोंट बी एबल टू एस नीट पीजी। सो आई थिंक दैट वो प्लेटू जो था ना, उसमें मुझे रियलाइजेशन हुआ कि मैं अप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। नीट पीजी बस नॉलेज का गेम नहीं है, यू हैव टू अप्लाई दैट नॉलेज टू, यू हैव टू मेक योर सेल्फ दैट काम कि आप उसको अप्लाई कर पाओ इन एग्जाम हॉल। तो तुमने ये एप्लीकेशन के लिए, मतलब जैसे तुमको लगा कि ये तुम्हारा लैग कर रहा है, तुम अप्लाई नहीं कर पा रही चीजों को, तो तुमने इसको कैसे चेंज किया? एक्चुअली यू नो, आई रियलाइज वाइल गिविंग जीटी कि मतलब मुझसे एप्लीकेशन में दिक्कत हो रही है, मैं सिली मिस्टेक ज्यादा कर रही थी एज कम्पेयर टू। आई रियलाइज माई सेल्फ कि मतलब मैं कंसेप्ट को इतना वीक नहीं है मेरा, पीवाईटीज भी मैं सही कर लेती थी, बीटीआर भी सही कर लेती थी, बट आई कैन नॉट अप्लाई माई नॉलेज, है ना। वही टॉपिक मुझे पता होता था, फिर भी मैं क्वेश्चन गलत करती थी। सो आई थॉट कि चलो जीटी देके देखते हैं, हर 3 दिन में मैं एक जीटी दूंगी। फॉर 2 straight months आई गेव like 3 GT every third day I gave GT। तो नियरली 10-20 जीटीज मेरी हो गई थी, 15-20 जीटीज हो गई थी। और उसके बाद लाइक आफ्टर 2 months ना, माई रिजल्ट गॉट चेंज्ड। आई गॉट मोर देन 20 करेक्ट्स, लाइक I was getting 135 correct earlier, and I went to 150 to 155 correct in just 2 months. So I think that application is very important in NEET PG. Having just knowledge of something is different, and applying it is a different thing. Okay, so while entering into the medical college, you believe that ki only students from the AIIMS, yeah, Delhi colleges or Mumbai colleges get central institute seats. So how harmful are such narratives? Actually, you know, when you think कि कोई और हमसे ज्यादा है और वो सिर्फ वही ये काम कर सकता है, तो योर माइंडसेट इज वेरी नैरोड। अगर आपका माइंडसेट ही नैरोड है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कभी लेस देन टॉप 100 में आ ही नहीं सकती, तो कैसे आ पाओगे? अगर आपको कोई रैंक अचीव करना है ना, तो पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने माइंडसेट चेंज कर लिया, तो 50% काम तो ऐसे ही हो गया है। सो थिंग्स लाइक दिस ना, कि अगर आपको आपको बोल रहा है कि पेरिफेरल कॉलेज के बच्चे तो नहीं जा पाते हैं भाई सेंट्रल इंस्टीट्यूट में, तो आई थिंक दैट इट्स टोटली रॉन्ग। ओके, फर्स्ट यू हैव टू चेंज दैट माइंडसेट, उसके बाद ही आप रैंक ला पाओगे। Okay,
तो होता है ना, हमारा जो सराउंडिंग फ्रेंड्स होते हैं या सराउंडिंग सर्कल होता है कलीग्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे करियर प्रोग्रेस में और हमारे डिसीजन मेकिंग में भी। तो तुम्हारा ऐसा कुछ था, ऐसा स्टोरी हो जो तुम शेयर करना चाहते हो कि तुम्हारे फ्रेंड्स या तुम्हारे कलीग का ऐसा कुछ मोटिवेटिंग मोमेंट या ऐसा कुछ मोमेंट जिसने तुमको मोटिवेट किया कि नहीं, यू कैन डू इट? एक्चुअली फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि हम अपनी फैमिली से दूर रह रहे हैं। तो हमारे लिए जो भी क्लोज टू फैमिली है, दे आर फ्रेंड्स। सो इफ यू आर हैविंग टॉक्सिक फ्रेंड्स जो आपको हमेशा डिमोटिवेट कर रहे हैं कि तुम नहीं कर पाओगे, या फिर तो you won't be able to perform that great. With me the thing is I had 2-3 friends which were very great with me also। जब भी मुझे प्रॉब्लम होती थी related to internship and all, क्योंकि इंटर्नशिप भी चल रहा था, everything was very hectic, so I used to go to them and they will like console me, okay? So it was very important। मैं कभी anxiety में नहीं आई because of them। Also when I was getting like just 130 credits, they also told me कि you have the potential, okay? तुमने 4 साल कॉलेज टॉप किया है ना, you have the potential that you can get into top 500 rank, है ना? तो you work hard for that। they also told me their tricks that they used to do in NEET UG time, so it also helped me also। like one of my friend only told me that give GT every 3 days and it will help you, and I think it helped me very much। ओके। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारा जैसे एज फॉर एग्जांपल यू एंटर इनटू द एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में, तुम्हारा कैसा रूटीन रहता था? मतलब जो स्टार्टिंग गोइंग फ्रॉम अटेंडिंग क्लासेस टिल इवनिंग, मतलब कैसे अपने रूटीन को तुम प्रिपेयर करती थी कि हाँ सब कुछ डिवाइड इक्वली हो पाए? फर्स्ट ईयर में तो आई विल से कि मैं ज्यादा मैनेज नहीं कर पाई थी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में क्लासेस लाइक 4-5 PM तक तो क्लासेस ही रहती थी। उसके बाद फिर मैक्सिमम आके 1-2 घंटे पढ़ पाते थे, उसके बाद भी सीनियर्स के साथ में इंटरेक्शन रहता था, तो मैं ज्यादा कर नहीं पाई थी फर्स्ट ईयर में। बट फ्रॉम थर्ड ईयर आई विल से दैट व्हाट आई यूज्ड टू डू इज, सुबह अगर क्लास जा रही हूँ तो क्लास में जो सर टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसको मैंने अपने नोट से पढ़ लिया। जो जो भी सर क्लास में पढ़ा रहे हैं, अगर मुझे टाइम वहाँ पे मिल रहा है तो मैं एमसीक्यू सॉल्विंग वहीं पे कर लूंगी, है ना? इफ आई एम इन पोस्टिंग तो वही टॉपिक पोस्टिंग में कर लिया कंप्लीट। अगर ऑर्थोपेडिक्स की पोस्टिंग चल रही है तो आई यूज्ड टू कंप्लीट माय ऑर्थोपेडिक्स नोट्स, है ना? आई यूज्ड टू डू एमसीक्यूज व्हेनेवर आई गॉट टाइम। सो दिस वाज माय अप्रोच। आई यूज्ड टू स्टील एवरी आवर दैट आई कैन गेट फ्रॉम देयर, ओके? सुबह का टाइम मिल रहा है 1 घंटे का तो सुबह पढ़ लिया। अगर लौट के आ रहे हैं अराउंड 3-4 PM, तो उसके बाद 1 hour का नैप ले लिया और फिर उसके बाद पढ़ने बैठ गए। सो आई यूज्ड टू स्टडी 4 hours आफ्टर दैट, और उसके बाद जो भी टाइम आई कैन एंजॉय विद माय फ्रेंड्स। तो ऐसा बहुत बार होता है ना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और देख रहे हैं फ्रेंड्स कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ये ना एक बहुत एक डिस्ट्रैक्शन टाइप होता है, अरे यार मैं जा नहीं पा रहा क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो अगर कोई ऐसा सुन रहा हो और उसके साथ ये सारी चीजें होती हैं, तो फिर कैसे अपने आप को रोके? जैसे तुम अपने आप को मोटिवेट करके नहीं यार रोक सकते हैं उस टाइप का? यू नो एवरीवन हैज डिफरेंट जर्नी। सबकी जर्नी अलग है, सबके टारगेट्स अलग हैं। मे बी जो फ्रेंड्स ट्रिप में जा रहे हैं उनका टारगेट अभी नहीं है नीट पीजी, बट राइट नाउ योर टारगेट इज नीट पीजी, है ना? बहुत सारे लोगों का टारगेट होता है कि हम इंटर्नशिप के बाद ड्रॉप लेके नीट पीजी करेंगे। सो मे बी देयर टारगेट इज दैट, बट योर टारगेट इज डिफरेंट, योर वाई इज डिफरेंट। सो आई थिंक दैट मेक अ स्ट्रॉन्ग वाई कि आपको क्यों करना है ऐसा। आई हैव टू प्रूव माई सेल्फ कि मैं एक बार में इंटर्नशिप में पेरिफेरल कॉलेज से होने के बाद भी मैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जा सकती हूँ। सो दिस वाई शुड बी स्ट्रॉन्ग and it will stop you from like any of the temptation that you're having right now ना। if you have a strong why, तब आपको कुछ भी फील नहीं होगा। कोई भी ट्रिप में जा रहा होगा ना, आपको बस ये पता है कि आपकी जर्नी अलग है, उनकी जर्नी अलग है, उनके टारगेट्स अलग हैं। सो दिस थिंग आई थिंक यू शुड कीप इन योर माइंड। ओके, सो जब तुमने पहली बार आईएनआई का एग्जाम दिया, यू गॉट 436 रैंक ना, तो व्हाट वाज योर इमीडिएट रिएक्शन? Actually, I was very surprised, you know, for me it was like very surprising। NEET UG rank, my NEET UG rank was around 14,400, और फिर उससे डायरेक्टली INI-CET में रैंक मेरी 436 आ गई थी। इट वाज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। ऑल्सो यू नो इट इंक्रीज माई कॉन्फिडेंस इन माई सेल्फ कि यार अगर मैं पढ़ रही हूँ ना तो मैं कर सकती हूँ। मैंने पढ़ा है एंड इट्स गिविंग मी रिजल्ट। सो इट Okay. वर्कड इन माई बूस्टिंग माई कॉन्फिडेंस कि मैं आगे 3 महीने अगर और पढ़ती हूँ नीट पीजी के लिए, सो आई गेट दैट रिजल्ट दैट आई वांट। तो फिर तुमने उसके बाद से कुछ चेंजेस किए अपने पढ़ने के स्टाइल में, या ज्यादा पढ़ने में, या जीटी की फ्रीक्वेंसी, या वही सेम सेम चीज को फॉलो किया? नो, आई डिड द सेम थिंग, आई डिड द एग्जैक्टली सेम थिंग। वही 3 जीटी, मतलब एवरी थर्ड डे आई यूज्ड टू गिव जीटी। बस द थिंग दैट आई चेंज्ड, आई थिंक कि INI-CET के पहले लास्ट 15 डेज में आई वाजंट एबल टू रिवाइज एवरीथिंग। मतलब जो भी था रिवाइज करने के लिए 19 सब्जेक्ट्स का मैं नहीं रिवाइज कर पाई थी, बेसिक थिंग भी नहीं कर पाई थी, तो मैं ऐसे एग्जाम देने चली गई थी। बट इन नीट पीजी आई रियलाइज कि ये ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं यही करूंगी तो मेरी रैंक और खराब हो सकती है। सो आई डिसाइडेड कि मैं अब ऐसा कंपाइलेशन करूंगी अपने कंसेप्ट का और अपने नोट्स का कि आखिरी के 15 डेज में आई विल बी एबल टू रिवाइज इट।
So this is the thing that I think I changed, and it also helped me. My rank in NECT was 436, and in NEET PG I got 181 rank. So I think this could be a reason for that. Okay, so NEET PG was postponed by 2 months. Okay, so how did you maintain consistency during that period? Actually, when I got the news of NEET PG postponement, I took 3 days ka break. Okay, and then I thought to myself that maybe God is giving me extra 2 months कि मैं अपने लिए जो रिजल्ट मैं सोच रही थी, आई वांटेड टू गेट इन टॉप 100 रैंक एंड टॉप 500 रैंक आई वांटेड टू गेट, आई कैन गेट दैट. ओके, गॉड इज डूइंग दिस फॉर मी एंड इट्स अबाउट मी. सो आई वर्कड इट लाइक दैट, है ना. तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे लिए ही हुआ है. सो आई वर्कड इट लाइक दैट, और फिर आई जस्ट मेंटेन द कंसिस्टेंसी कि जो चल रहा है वही चलना चाहिए, ब्रेक नहीं होनी चाहिए कंसिस्टेंसी. सो दिस वे आई गॉट द रैंक दैट आई वांट. So after calculating 170 plus corrects, okay, so you felt satisfied regardless of the rank. How important is internal closure after an exam? इफ यू फील दैट आपने अपना बेस्ट दिया एग्जाम में जाके ना, कि मेरे पास जितना भी था, जो भी बेस्ट मैं कर सकती थी वो मैंने कर दिया एग्जाम में जाके, देन यू हैव टू बी सेटिस्फाइड. बिकॉज जरूरी नहीं है कि एग्जाम वैसा ही जाए जैसा आपने सोचा है. बस आपने बेस्ट किया अपना, दैट इज इम्पोर्टेंट. अगर आपका बेस्ट नहीं था, देन देर विल बी नो इंटरनल सेटिस्फैक्शन आई से. पर अगर आपका बेस्ट था, है ना, आपके साथ एग्जाम में वही सब कुछ हुआ जो आप चाहते थे, आपने अपनी तरफ से पूरा बेस्ट ट्राई किया, एक्सेप्ट फॉर सिली मिस्टेक इट कैन हैपन. बट अगर आपने अपनी तरफ से बेस्ट ट्राई किया है, आपका बेस्ट शॉट है, देन यू हैव टू बी सेटिस्फाइड. क्योंकि जरूरी नहीं है रिजल्ट वैसा ही है जैसा हम हमेशा चाहते हैं, है ना. इट कैन चेंज, बट व्हाट आई विल से दैट you worked hard for it, and this will give you the satisfaction, and you can move on with your life even if the result is not as you have expected. Okay, so what would you say to the students who feel they must sacrifice life completely to crack NEET PG? I'll say that MBBS, you and I both know that MBBS is a once in a lifetime opportunity. लाइफ में एक बार MBBS जर्नी होती है, और उसके बाद आगे की लाइफ विल बी वेरी हेक्टिक. हमें लाइफ टाइम पढ़ाई करनी है, लाइफ टाइम हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रहना है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस दैट कि हमारी 20s चल रहे हैं. वी कैन नॉट सेक्रीफाइस इट फॉर लाइक स्टडिंग के लिए. ठीक है, पढ़ाई तो करनी है साथ में, बट वी कैन नॉट सेक्रीफाइस एवरीथिंग. अगर अभी अभी से आपने सेक्रीफाइस करना सीख लिया, तो आगे जाके भी आप कभी इंजॉय नहीं कर पाओगे, है ना. And as much as I know, I don't remember Crab Cycle right now, but I just remember that the trip I went with my friends. Now I remember that. The fun that I had in my college life, I remember that. So I'll suggest कि try to balance thing. Okay, use your time wisely. अगर आपको 24 आवर्स मिल रहे हैं तो 8 घंटे सो लो, लेकिन उसके बाद का टाइम बहुत वाइजली यूज करना है. डोंट वेस्ट योर टाइम इन एनीथिंग दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, यूज योर टाइम इन स्टडिंग, यूज योर टाइम इन हैविंग फन, पर अपना टाइम वेस्ट मत करना है इधर उधर. Okay, so now we'll start with the rapid fire where you have to answer your thing in one sentence. So one sentence to describe your MBBS journey. It was unforgettable for me. One habit that made the biggest difference. I was very consistent throughout my MBBS journey. One myth about NEET PG you want to break. That you cannot have a life while preparing for NEET PG. One thing you'll never regret from MBBS. Anything. I will never regret anything from my MBBS life. Okay, so one line for students stuck in a plateau. That if you're stuck in a plateau right now, just be there. Okay, just open your books daily, just show up daily, you'll pass through it. I have done it myself. I've been in a plateau for 6 months and I've passed it. I scored 171 correct in NEET PG, so you can do it too. Okay, so your journey reminds us of something we rarely talk about in medicine. You don't have to burn out to succeed. You can study with discipline and live your college life. You can hit plateaus and still break through. You can doubt yourself and still end up where you belong. So your story proves that success isn't always about studying longer. It's about studying smarter, staying consistent, and trusting your pace. So if you are listening and feeling stuck, tired, or scared of enjoying life during preparation, remember, balance is not a distraction. It's often the reason you last till the end. This is Salah Swords, where the real journeys create confident doctors.